مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تم دونوں کو دیکھ کے کہ تم ہمارے گھر آئے ہو. میں تو کب سے کہہ رہا تھا خالہ اس کو کہ امی کی طرف چلتے ہیں، ہمیشہ یہی منع کر دیتی ہے. اچھا کیوں بیٹا، ماں سے ملنے کو دل نہیں چاہتا؟ نہیں تو وہ امی. سچ بتاؤ نا خالہ کو، ورنہ یہ لوگ سمجھیں گے کہ میں تمہیں روکتا ہوں. یہ خود نہیں آتی امی. ارے کیوں بیٹا، آ جایا کرو وہاں سے ملنے، میں تمہاری راہ دیکھتی ہوں. جی امی، وہ بھائی کدھر ہے؟ بھائی تو آفس گیا ہوا ہے نا. مبارک ہو خالہ، کمال ہے کہ سالے صاحب کی نوکری لگ گئی اور آپ نے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا مجھے. ارے نہیں نوکری کہاں لگی بیٹا، وہ تو بس اپنا ہی کاروبار شروع کیا چھوٹا موٹا. تو بتانا چاہیے تھا مجھے خالہ، اکلوتا داماد ہوں. لوگ تو اپنے اکلوتے داماد کو سر پر بٹھا کر رکھتے ہیں، اور یہاں ہے کہ ارے نہیں ایسی بات نہیں بیٹا، بلکہ ہم تو سوچے تھے کہ ہم تمہارے گھر جائیں گے تحائف لے کر. توحفوں کا بوکھا نہیں ہوں خالہ میں. بندہ منہ میٹھا کروا دیتا ہے، مٹھائی منگوا دیتا ہے. اچھا چائے پیو نا، میں پھر کھانا وانا لگاتی ہوں. ہاں صرف چائے بسکٹ، خیر چھوڑیں. بھائی ہے نا بزنس مین کی بیٹی، بزنس تو میرے بچوں کے خون میں دوڑتا ہے. بھائی پہلی ہی میٹنگ اتنی کامیاب. ویل ڈن مائی چائلڈ. تھینک یو پاپا. پاپا آپ مجھے تھوڑا بتا دیتے کہ جس کمپنی کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہو رہی ہے وہ کون تھے، مجھے نہیں پتا تھا. یہ نئی کمپنی ہے، پچھلے دنوں اس کے اونر ملے تھے، بس پھر بات آگے بڑھتی چلی گئی. بابا میں بھی تو نہیں ہوں نا، کوئی لاس ہو گیا تو. کوئی بات نہیں بیٹا، انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے. میں چاہتا ہوں تم سیکھو اور انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ لائف میں. تھینک یو پاپا. ماما بھائی کا فرسٹ سیشن کیسا رہا؟ ٹھیک ہی تھا بیٹا، آہستہ آہستہ سنبھل جائے گا انشاءاللہ. مجھے وہاں پہ ماہا اور آپا ملی. اچھا، وہ لوگ وہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ یہ بات کی طرح ماہا کا بھی سیشن چل رہا تھا. اوہو، دیکھو میری ایک ہی بہن ہے اور میں اس کے اور اس کے بچوں کے معاملات سے کتنا بے خبر ہوں. ویسے ماہا بہت چینج ہو گئی ہے، پہلے جیسی ایکٹیو کانفیڈنٹ رہی نہیں. اب اس کو دیکھ کے مجھے بہت عجیب سا لگا. آئی گیس آپ دونوں کو ماہا کی خبر لینے جانا چاہیے. ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، جائیں گے وہاں پہ. ماما ڈاکٹر نے بتایا کہ کب تک علاج چلے گا؟ یہ تو ماہا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب ٹھیک ہونا چاہتی ہے، چاہے اسے 1 ہفتہ لگے چاہے 1 دن لگے. کیا وہ ٹھیک نہیں ہونا چاہتی؟ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ماہا زندہ رہنا ہی نہیں چاہتی، لیکن اس کا ایک علاج ہے. اگر ہم ماہا اور عباد کی شادی کر دیں تو. ماما یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ ارے اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ ماما یہ حیران نہیں پریشان ہونے والی بات ہے. آپ نے یہ سوچا بھی کیسے؟ میں نے کون سا ایسے غلط کام کے بارے میں سوچا ہے؟ ماما یہ ناممکن بات ہے، پرانی بات ہے، بھول جائیں ان سب کو. تم شاید قدرت کے اشارے سمجھ نہیں رہے ہو روفی. قدرت کے اشارے؟
कैसे इशारे? देखो इतना अरसा हो गया, इबाद की शादी नहीं हुई। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद महा का घर नहीं बच सका। तो बताओ इन सब का क्या मतलब निकलता है? इसका ये मतलब निकलता है मामा कि दोनों के सितारे गर्दिश में हैं। तुम नहीं समझ रहे हो शायद। कुदरत भी दोनों को एक करना चाहती है। माई आप कैसी बातें कर रही हैं? रूफी तुम मानो या ना मानो, मगर मेरे दिल को पूरा यकीन है उस लड़की की जो डेथ हुई है ना, तो कुदरत इन दोनों को मिलाना चाहती है। दिल तो चाह रहा था उसका मुंह ही नोच दूं। कैसे बिटर बिटर देखी जा रहा था मुझे। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी थी कि मैंने इस घटिया इंसान को मुंह लगा लिया। इतना गुस्सा नहीं। तुम ये यहाँ क्या कर रहे हो? आपका रंग जल जाएगा। देखो, मुझसे दोस्ती करना। तुम ना अपनी हद में रहो। मेरी तो कोई हद ही नहीं। चाय तो आजमा लो। आप यहाँ? मैं पानी लेने आया था यहाँ पर। तो आप मुझे बोल देते हैं, मैं ला देती। अरे मैंने सोचा तुम खाला के साथ बैठे, तुम्हें क्यों डिस्टर्ब करूं, तो इसलिए मैं खुद ही आ गया। लाई, मैं पानी दे देती। नहीं, मैंने पानी पी ली, ये तुम रखो, मैं जरा, मुझे काम है, मैं आता हूँ, बाहर से आ रहा हूँ। कैसे बर्दाश्त कर लेती तुम इस शख्स को? बोलने तक की तमीज नहीं है इसे। क्या हुआ है? तुमसे कुछ कहा है इन्होंने? अब नहीं तो तुम्हारी बात कर रही थी, देखा नहीं तो तुमसे कैसे बात करता है। अगर मेरी ऐसे बंदे से शादी होती ना, तो या तो मैं तलाक ले देती या मैं इसे छोड़कर कब का भाग जाती। इबाद मिला था। देखा, मैं भी तुमसे यही कह रही थी। क्या? यही कि रुबैल की डेथ एक सिंपल सा एक्सीडेंट था। ये तो एक इशारा था तुम्हें और इबाद भाई को फिर से मिलाने का। ऐश प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी महा? तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। क्या हुआ मेरी जिंदगी को? सब ठीक ही तो है। ये ठीक है, हालत देखो अपनी। कभी खुद पे गौर किया है तुमने? आप प्लीज जाएं यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। खुद से भागना छोड़ दो महा। मैं क्यों भागूंगी किसी से? हमसे नहीं भाग रही तुम, खुद से भाग रही हो, और अपनी मोहब्बत से भी। प्लीज आप जाएं, जस्ट लीव मी अलोन। कुछ टाइम पहले भी तुम्हें यही लगा था ना कि इबाद को अपनी जिंदगी से निकाल दोगी तो सुकून से रहोगी। क्या रही तुम सुकून से? प्लीज आप जाएं यहाँ से, प्लीज। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन तुम प्लीज अपने दिल की सुन लो, जो पता नहीं कब से तुमसे कुछ कहना चाह रहा है। तुम सबकी सुन रही हो सिवाय अपने दिल के। ऐश प्लीज जाओ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अली है। मैं रज़ा का पार्टनर हूँ। सजना
खुशी, जी मम्मा। दिल नहीं लगता ना तुम्हारा? क्या मतलब? मतलब ये कि अली को मिस करती हो ना तुम बहुत, मम्मा प्लीज, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। और इतनी मजबूत भी नहीं हो जितना तुम खुद को समझती हो। अब क्या कह रही हैं? प्लीज वापस लौट जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं क्यों लौटूं मामा? मोहब्बत का दावेदार तो वो भी था ना, वादे तो उसने भी किए थे। बेटा, मोहब्बत में जिद नहीं होती, और जहां जिद होती है वहां मोहब्बत नहीं होती। ठीक कह रही हैं, शायद जिद्दी थी, जितना कम अर्ज, इतना कम अर्ज हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सके। खुशी, जिद नहीं, गुस्सा है तुम दोनों को एक दूसरे पर। मान नहीं रखा होगा तुम दोनों ने एक दूसरे का। मामा प्लीज, आप उस शख्स की हिमायत करना छोड़ दें, बस कर दें। उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं तो तुम्हारे दिली सुकून का कह रही हूँ। मामा मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करें। सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। टूटा मेरा सपना सपना, माना जो तुझको अपना, वीरान सा मुझको कर गया। धुंधला हुआ रस्ता रस्ता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया ना खो। ये हैं रज़ा साहब के पार्टनर, और ये हैं हमारी कंपनी के सीईओ खुशी ज़िया। अनजान सुकून सा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। कर पाऊंगा ना। समझ नहीं आ रहा है जिंदगी किस तरफ लेके जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मैं एक बार फिर से इबाद की तरफ, नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो रुबैल को कत्ल, नहीं 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 नहीं, वो कत्ल तो नहीं था। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं रुबैल का कत्ल करूं। वो तो खुद मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, लेकिन क्या वाकई मैं और इबाद फिर से एक बार पता नहीं। अली, तुम्हें बताना ही भूल गई, आज नदीम और सारा आए थे घर पे। अच्छा, तो आप उन्हें रोक लेती ना, मैं भी मिल लेता उनसे। सोचा था मैंने कि सारा को एक दिन के लिए तो रोक लूं, लेकिन फिर नदीम ने कहा कि खाने पीने का मसला हो जाता है। मैंने बोला सही तो कह रहा है बेचारा। अगर आप कहें तो मैं नदीम को फ़ोन कर दूं कि कुछ दिन के लिए सारा को भेज दें यहाँ। नहीं बेटा, उनकी अपनी जिंदगी की रूटीन है, अब वो कितने दिन रहेगी, आखिर को वहीं जाना है ना उसने। आई एम सॉरी अम्मी, मैं आजकल अपने काम में थोड़ा मसरूफ़ हूँ, वरना आपको ज़्यादा टाइम दे देता। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, बस कोई मेरी मजबूरी नहीं समझ पाता। अल्लाह ना करे अम्मी, ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी? अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि वो तुम्हारी मीटिंग थी किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्या हुआ उसका? हो गया कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से हमारा। तो ऐसी शक्ल में बता दी तो खुशी की बात है ना। आप जानती हैं जिस कंपनी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कंपनी किसकी है? किसकी है? जिया साहब और उनकी बेटी खुशी की। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? जिया साहब जानते बूझते तो कभी भी तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। खुशी ने किया है अम्मी कॉन्ट्रैक्ट, उसे तो बहुत अच्छा मौका मिल गया है ना मुझे अपने अंडर काम करवाने का। तुमने इनकार तो नहीं किया ना? क्या हो गया अम्मी, इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं जज्बात को काम से बिल्कुल अलग रखता हूँ। आप बेफिक्र रहें,
मैं करूँगा काम उनके साथ, लेकिन चलेगी उसकी नहीं, चलेगी सिर्फ मेरी। अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। सफाई अभी जरूरी है? क्या जल्दी इतनी? मेरे जाने के बाद कर ली थी तुम। वो आपके लिए ना पाए बना रही थी, तो उसमें 4 से 5 घंटे लगेंगे, फिर आपके खाने का टाइम हो जाएगा, इसलिए सोचा अभी सफाई कर लूं। तो पहले ही बताना था कि पाए बना रही। बैठो, एक बात करनी है तुमसे। बैठ जाओ, काटता नहीं हूं मैं। ये तुम्हारी कजन है समीरा, ये कल तुमसे किचन में क्या बात कर रही? जी कुछ नहीं। कुछ नहीं। कुछ कहा उसने मेरे बारे में? ये जो कजन है ना तुम्हारी समीरा, ये ठीक लड़की नहीं है। मुझे इस पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं है, और तुम भी उससे आइंदा बात मत करना। मगर क्यों? कहा तो है कि वो ठीक लड़की नहीं है, घर खराब कर देगी तुम्हारा। भला वो ऐसा क्यों करेगी? तुम्हें एक बात बार बार समझानी पड़ती है। तुम्हारे शौहर पे डोरे डाल रही थी वो। अब जाओ किचन में। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम लोग इस तरह अचानक मेरे घर चले आए। यकीन नहीं आ रहा या आपको अच्छा नहीं लगा हम इस तरह आ गए? अरे जन्नत, कैसी बातें कर रही हो, मुझे तो बहुत खुशी हुई। मेरे भाई की फैमिली के अलावा इस दुनिया मेरा और है ही कौन। ठीक कह रही हैं आप। अब हमारी फैमिली में बचा ही कौन है? हम तो भाई महा को देखने आए थे, कैसी तबीयत है उसकी? अच्छी है वो, लेकिन तुम लोगों से मिलके और अच्छी हो जाएगी। पता है, तुम सबको वो बहुत याद करती है। आप सच पूछे तो हमने भी आपको और बच्चों को बहुत याद किया है। जया, मेरी गलती थी। मेरी अना की वजह से मैंने कितने लोगों के दिल तोड़ दिए। तुम लोग मुझे माफ कर दोगे? आपा, क्या बात कर रही हैं आप? क्यों गुनाहगार कर रही हैं हम लोगों को? ये तो हम बड़ों का ही कसूर था। अब क्या फायदा इन सब बातों का? जो होना था सो हो गया, बस अब सब भुला के आगे बढ़ते हैं। तुम ठीक कह रही हो, मैंने तुम सबसे कब से अपना दिल साफ कर लिया था। अरे खुशी नजर नहीं आ रही, कहाँ है? शायद महा के रूम में गई है। अच्छा अच्छा, चाय वाय तो लो ना। जी जया, चाय लो। जी आपा, थैंक यू।
क्या हुआ समीरा, कोई काम था? वो पता नहीं। क्या मतलब, हाँ या नहीं? हाँ एक काम था मगर अब नहीं, कुछ नहीं है। क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समीरा, कोई बात है तो बताओ, क्यों उलझा रही हो मुझे? उलझ तो मैं खुद चुकी हूँ। मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है? शेयर नहीं करोगी मुझसे? अली, काफी दिनों से मुझे एक लड़का बहुत तंग कर रहा है। तंग कर रहा है? कौन है वो? नहीं बता सकती है। कमाल कर रही हो, बता भी रही हो और बात छुपा भी रही हो। मजबूरी है, अभी नहीं बता सकते उसके बारे में। मगर वो हमारा बहुत ही करीबी है। क्या करीबी है? तुम मुझे नाम बताओ, मैं अपने तरीके से समझाऊंगा उसे। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर मैं तुम्हें उसका नाम बता दूंगी तो तुम मुझे ही गलत समझोगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा, बेफिक्र रहो तुम। नाम बताओ। अली, पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पे गुस्सा नहीं होगे और मेरा यकीन करोगे। अच्छा, मैं वादा करता हूं तुम्हारा यकीन करूंगा। अब बताओ। वो है ना अपने अली, जी अम्मी, आया। एक मिनट से मेरी। महा, मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? चलो मेरे साथ नीचे। मुझे पता भी है कौन आया। कौन है? तुम्हारे इन लॉज आए। मेरे इन-लॉज? यस, इबाद भाई के पेरेंट्स आए। चलो जाकर मिलो उनसे। मैं नहीं मिलूंगी। क्यों नहीं मिलोगी महा? इतना अच्छा मौका है फिर से रिश्ते जोड़ने का। आपने फिर वही बातें शुरू कर तुम दी। चाहे जितना अस्सलाम मर्जी- वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो महा? ठीक हो? आप आयशा हैं, रूफी की वाइफ? जी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। महा, पप्पू से पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सोचा तुम्हारी इयादत कर लें। अब ठीक हूँ मैं, थैंक यू। चलो, ये तो अच्छी बात है। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। इतनी जल्दी? बैठो ना हमारे साथ। नहीं, एक्चुअली मुझे ऑफिस जाना है, मीटिंग है ज़रूरी, तो निकलना होगा। मैं तो बस वहाँ को देखने आई थी। फिर तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। वैसे अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी, थैंक यू। वहाँ अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। वो तुम्हारा हाल पूछ रही थी, तुमने उससे बात तक नहीं की। मुझे नहीं समझ आया मैं क्या कहूँ। सारा, अब ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे दे दें, मैं कर देती हूँ। अरे मुझे करने दो, सारे घर के काम तुम ही तो करती हो। ये लो, खाओ खाओ।
अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मैंने वो समीरा वाली बात बताई थी, उस पे तुम्हें गुस्सा नहीं आया? नहीं तो क्यों? एक औरत तुम्हारा घर खराब करने की कोशिश कर रही है और तुम्हें उस पे गुस्सा नहीं आया? मैं बात करूंगी समीरा से। अरे बात क्या, यहाँ तो औरतों को पता चले कि कोई दूसरी औरत उनका घर खराब कर रही है, वो तो वावेला मचा देती हैं, लड़ाई करती हैं। बात करने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो लड़ाई करो उससे जाकर। मुझे लड़ना नहीं आता। तुम्हें लड़ना नहीं आता? अरे भाई इसके घर जाओ, बल्कि मैं काम करूंगा, मैं कुलसूम को तुम्हारे साथ भेजूंगा। घर जाना और उसको उसकी औकात याद दिलाना कि बिन बाप की लड़की कैसे आवारा होती है। क्या समझी तुम? जी। महा बेटा, कमरे से बाहर निकला करो, हम लोगों के साथ बैठा करो, इस तरह दिल बहलेगा तुम्हारा। और मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम्हारे मामू और मामी भी आए थे। मैं भी यही बता रही थी महा को, तुम्हें मिलना चाहिए था उन लोगों से। खैर, उनको पता है तुम्हारी तबीयत खराब है, उन्होंने इस बात का बुरा नहीं मनाया। वैसे मामा मुझे समझ नहीं आ रही इतना अचानक वो कैसे आ गए। क्यों? मेरा भाई की अपनी बहन से मिलने नहीं आ सकता अचानक? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे तो बहुत खुशी हुई उनसे मिलके। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मा, मैं कमरे में जा रही हूँ, आई डोंट फील गुड। बेटा बैठो ना थोड़ी देर हमारे साथ। दोबारा आती हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मामा मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, फिर मिलता हूँ आपको से। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आंटी, मुझे आपसे एक बात करनी है, अगर आप माइंड ना करें तो। कहो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि महा की शादी फिर से आबाद भाई से हो जाए? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि महा के डिप्रेशन का हल सिर्फ उसकी इबाद भाई से शादी है। लेकिन ये तो अल्लाह के फैसले हैं। लेकिन इंसान कोशिश तो कर सकता है ना, कोशिश करने में क्या हर्ज? लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। खैर, शुक्रिया कि तुमने महा के बारे में सोचा। देखें, हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है, कम टाइम में अच्छा काम करके देना। अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ गो अहेड। बातें तो सब कर लेते हैं मिस्टर अली, असल चीज़ है परफॉर्मेंस। जी, इसीलिए हमने मैक्सिमम 3 मंथ्स का टाइम पीरियड रखा है। ताकि हमारे क्लाइंट्स हमारी परफॉर्मेंस से मुतमईन रहें। क्या परफॉर्मेंस रही आपकी? I mean, आपकी कंपनी की। देखें, हमारी न्यू कंपनी है ये, फिर भी जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं, क्लाइंट्स हैं, उनकी लिस्ट में आपको ईमेल कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। मुझे कम बोलने वाले और ज़्यादा काम करने वाले एम्प्लॉय पसंद है। देखें, मैं आपका एम्प्लॉय नहीं हूँ, आपका वक्ती पार्टनर हूँ मैं।
اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے عزت دیں گی پلیز، اور یہ ملازموں والا رویہ نہیں رکھیں گی میرے ساتھ۔ اس کمپنی کے ریئل آنر کا ہے، میں ان سے بات کروں گی۔ رضا باہر گیا ہوا ہے کچھ ہفتوں کے لیے، میں آپ کو نمبر بھیج دوں گا، آپ کر لیے گا بات ڈائریکٹ۔ سارا، سارا، جی چلے۔ چلو۔ وہ آپ مجھے یہ تو بتا دیں، سمیرہ نے کچھ کہا تھا آپ سے؟ سمیرہ نے مجھ سے کچھ کہا تھا؟ میں باکردار مرد ہوں، اس نے کوشش تو بہت کی تھی، لیکن ایسی عورت کو میں اس کی چال دیکھ کر پہچان جاتا ہوں۔ کیسی عورت؟ کیسی عورت؟ تم تو ننھی بن جاتی ہو فوراً۔ کیا مجھے اس بات کا علم نہیں کہ شادی سے پہلے تم دونوں کیسے لڑکوں کو بے وقوف بنا کر پھنساتی تھی؟ جی نہیں، میں نے کسی کو بے وقوف نہیں بنایا۔ نہیں بنایا، بے وقوف مانتا ہوں، لیکن پھنسایا تو تھا نا۔ وہ کیا نام تھا اس لڑکے کا؟ اپنا کسی کا کوئی نام نہیں تھا۔ چلیں اب۔ کہاں گئے تھے آپ دونوں؟ کب سے انتظار کر رہا تھا میں۔ خیریت؟ کیا خیریت؟ اکیلا بور ہو رہا تھا گھر میں، اسی لیے بول رہا ہوں۔ بیٹا کل رات ذکر کیا تھا نا کہ تمہاری پھپھو کی طرف جائیں گے، بس وہیں گئے تھے۔ اچھا، مجھے یاد نہیں رہا۔ یہ بات بیٹا، اب اس غم سے نکلو، گھر سے نکلو، آفس جوائن کرو، دوستوں میں اٹھو بیٹھو۔ دیکھو گھر میں بیٹھے رہو گے تو کاہل ہی ہوتے جاؤ گے۔ کوشش کرتا ہوں بابا، لیکن کسی بھی کام کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ ہم جانتے ہیں بہت بڑے حادثے سے گزرے ہو تم بیٹا، کب تک یہی حال بنا کے گھومتے رہو گے؟ ادھر مہا کا بھی یہی حال ہے۔ کیا مطلب؟ ایسے ہی تمہاری طرح بوکھلائی بوکھلائی پھرتی رہتی ہے۔ اپنا خیال بھی نہیں رکھتی، نہ کھا رہی ہے، نہ پی رہی ہے، نہ کسی سے مل رہی ہے۔ آپ ابھی بہت پریشان رہتی ہیں اس کی طرف سے۔ ہمدردی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو اس سے۔ بیٹا دل تو کرتا ہے نا، دونوں گھروں کے بچوں کو جیسے نظر کھا گئی ہو۔ عشق ہے یا سزا یہ کوئی مجھے بتا دے، جیتے جی میں کیوں مر رہا۔ کیا تمہیں کال نہیں ہے یہاں سے؟ اچھا، میں نے تو تمہارا نمبر دیا تھا انہیں۔ چلو میں بعد میں بات کرتا ہوں تم سے۔ تم اب تک کیا ہو؟ مجھے لگا تھا کہ تم چلے گئے ہوگے۔ میری عادت نہیں ہے میدان چھوڑ کر بھاگ جانا، یہ عادت کسی اور کی ہے۔ Behave yourself۔ ورنہ کیا کرو گی؟ یہ کانٹریکٹ کینسل کرو گی نا؟ کر دو۔ یہ جاب چھوڑ کر تو تم خود جاؤ گے۔ Mark my words۔